Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूं कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से कहे The ephod. वह एफोद Come on, tell your neighbor. वह एफोद Once again. वह एफोद The ephod. द एफोद Once again. द एफोद You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. Okay, before we start the word, ठीक है, वचन शुरू करने से पहले this message will go on for quite some time. और ये संदेश जो है काफी वक्त तक जारी रहेगा. Amen. Amen. Firstly. सबसे पहले. Secondly, I am not preaching to our church alone. और दूसरी बात यह है कि मैं केवल अपनी ही कलीसिया को संदेश नहीं दे रहा हूँ. This is the word of prophecy. ये एक भविष्यवाणी का शब्द है. That is coming for every single person who is in the body of Christ. और जो कोई भी मसीह के शरीर में है उन सभी के लिए ये शब्द आ रहा है. Also, और ये भी है, it is very important that you and I understand. ये बहुत ही अनिवार्य है कि आप और मैं इस बात को समझ ले. This is the sounding of the trumpet of God. और ये परमेश्वर की ओर से जो करना है, जो बजने वाला है, वो है. Amen. Amen. So get ready, everybody. तो सभी जन तैयार हो जाओ. You can, I am saying, you can forget any message which I have preached. देखो Till date. देखो मैं ये कह सकता हूँ, आज के तारीख तक जितने भी मैंने संदेश दिए हैं वो आपको सब कुछ भूल सकते हो. I'm saying that to मैं you. ये आज आपसे कह रहा हूँ. You can forget every single message that I have preached till date. और आज के तारीख तक जितने भी संदेश मैंने दिए हैं वो सब कुछ आप भूल सकते हो. But don't forget this message till you are on this earth. लेकिन जब तक आप इस धरती पर हो, आज ये जो संदेश देने वाला हूँ उसे कभी ना भूलिएगा. You know, I'll tell you what is the problem in our church. और मैं आपको बताता हूँ हमारी कलीसिया में समस्या क्या है. You hear the word here. आप यहाँ पर शब्द को सुनते हो, वचन को सुनते हो. आप यहाँ पर वचन को सुनते हो, And when you go home, और जब आप घर चले जाते हो, you don't go on YouTube and listen to that message again. आप YouTube पर जाकर उस वचन को वापस नहीं सुनते हो. Nor do you listen to the word, to this message throughout the week. ना हफ्ता भर आप इस वचन को सुनते हो. So the problem with our church is तो हमारे कलीसिया के साथ समस्या ये है that we do not have the power to bring forth fruit according to the word that is preached in this church. कि हमारे पास वो सामर्थ्य है ही नहीं कि इस कलीसिया में जो वचन दिया जाता है, जो संदेश दिया जाता है, उसके अनुसार हम फल ले आ ही नहीं पाते हैं. वो सामर्थ्य नहीं है हमारे पास. So it is your choice to change your life. तो ये आपका चुनाव है आपकी जिंदगी बदलने के लिए. From today, आज से आगे when you go home, जब आप घर जाओगे, please listen to this word and every single word that is preached in our church. और ये शब्द को जाकर आप सुनो और हर एक वचन जो हमारे कलीसिया में बताया जाता है उसे भी सुनो. Amen. Amen. So are you ready for today's word? तो आज के वचन के लिए क्या आप तैयार हो? Amen. Okay, so today is part 1. तो आज है भाग 1. Amen. Amen. And let's open our Bibles to Matthew 25, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय. And we are going to read from verse 1 onwards. और हम वचन 1 से आगे पढ़ने वाले हैं. And we're going to see exactly what's happening in the world today. और हम ये देखने वाले हैं कि आज के दुनिया में क्या हो रहा है. Well, before I go ahead, ठीक है, आगे बढ़ने से पहले my base verse or the base character is going to be Gideon. और मेरा नींव का जो वचन है या फिर नींव का जो पात्र है वो है गिदोन. Amen. Amen. So let's read from verses 1 onwards, Matthew 25, everybody. और आइए वचन मत्ती रचित सुसमाचार इसका 25वां अध्याय से आगे हम पढ़ेंगे वचन 1 से आगे. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली. And 5 of them were wise and 5 were foolish. उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी. Now look at me, everybody. और आप सभी जन मेरे पास देखो. Now we all know the scripture very well. अब हम सभी जन इस वचन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. The Bible states that the Lord is likening unto the journey towards heaven as to 10 virgins that were on the way to meet the bridegroom.
और हम सभी जन जानते हैं कि परमेश्वर जो है स्वर्ग की ओर का जो सफर है उसे इनके समान यानी 10 कुंवारियों के समान दिखाया जा रहा है जो दूल्हे से मिलने के लिए निकले हैं. Or I can say they are like, it is the kingdom of heaven, the Lord says. और मैं खुदा कहता है कि ये खुदा का राज्य है. Yeah, it is. स्वर्ग का राज्य है. How will you depict the kingdom of heaven? कि आप स्वर्ग के राज्य को कैसे दर्शाओगे? And that is और वो ऐसा है 10 virgins taking their lamps and going to meet the bridegroom. कि 10 कुंवारियां जो है वो अपने मशाले लेते हुए दूल्हे से मिलने के लिए जा रहे हैं. Amen. Amen. Now, अब what is the most important point in this scripture is और इस वचन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा है? वो that ये there है were 5 wise and 5 foolish, कि उन- but all their lamps were burning. कि उनमें 5 मूर्ख और 5 सियाने थे लेकिन सभी के मशाले जल रहे थे. Amen. Amen. But when the bridegroom tarried, the Bible says, लेकिन बाइबल कहता है कि जब दूल्हे को आने को देरी हो गई that time the oil of the foolish got over. उस वक्त जो मूर्ख थे उनका तेल जो है वो खत्म हो गया. That means इसका अर्थ यह है there was a time in the life of all these virgins to pay the price and earn the extra oil. इसका अर्थ यह है कि इन कुंवारियों के जिंदगी में उन्हें वो वक्त मिला था कि वो ज्यादा का मोल दे और वो तेल जो है वो कमा ले. और ज्यादा तेल कमा ले उनको समय मिला था. But the 5 who were wise used it and 5 who were foolish did not make use of that time. और 5 जो थे जो सियाने थे उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और जो 5 मूर्ख थे उन्होंने उस वक्त का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया. Say it loudly everybody. Time. और सभी जन जोरों से चिल्लाकर कहो वक्त. बोलो. Time. वक्त. Time. वक्त. Time. वक्त. Time. वक्त. I will tell you something very important, everybody. मैं आप सभी को कुछ तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताता हूँ. What is the most valuable property that you have being as humans on this earth apart from salvation? और इस धरती पर इंसान होने के नाते वो कौन सा चीज है जो उद्धार को छोड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है. म्हणजे मराठीत सांगतो, मनुष्य या नात्याने तुमच्या जीवनामध्ये असं काय अतिशय बहुमूल्य आहे तारण जर का बाजूला सोडलं तर? द आन्सर इज टाइम. और जवाब है वक्त. Amen. Amen. The time that you have, समय जो समय आपके पास है that is the most valuable asset that any human can have being on this earth. और वो सबसे महत्वपूर्ण फायदे का चीज है जो कोई भी एक इंसान इस धरती पर पा सकता है. I'll give you a simple example. मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूँ. Now supposing you have decided to, suppose the doctor tells you you got a BP and you've got diabetes and you have to now take medicines and you have to make sure that you get completely recovered of that. और कल्पना करो कि डॉक्टर कहता है कि आपको डायबिटीज है, आपको बीपी है और आपको अब दवाई लेना है और पूरे दवाई लेकर इसमें से आपको चंगा होना है, ठीक होना है. And now somebody tells you if you exercise early in the morning you will be free of BP and diabetes. और अब आपको कोई तो कहता है कि अगर आप सवेरे उठकर आप कसरत करोगे तो आप बीपी और डायबिटीज से आप मुक्त हो जाओगे. So you get up in the morning. तो आप सवेरे उठते हो. You get up in the morning at 5 o'clock. आप सवेरे 5 बजे उठ जाते हो. But somehow or the other लेकिन कैसे ना कैसे करके you are not able to leave your bed, your cozy bed, till 6 o'clock. 6 बजे तक आप आपके बिस्तर को आरामदायक बिस्तर को छोड़ नहीं पाते हो. Then you're sipping your tea. और फिर उसके बाद आप चाय पीते हो. Then you're talking to somebody. और फिर आप किसी से बात करते हो. And while doing so, और ऐसा करते वक्त it becomes 8 o'clock. ये हो जाता है कि 8 बज जाते हैं. And then you say, और फिर आप कहते हो now how can I go out and exercise on the road because all the traffic has increased? अब मैं बाहर रास्ते पर जाकर कसरत कैसे करूं क्योंकि अब रास्ते पर भीड़ जो है वो बढ़ चुकी है. Now listen everybody. अब सभी सुनो. In short, थोड़े में बताया जाए तो you lost the time. आपने वो वक्त खो दिया. Amen. The greatest asset that any human has, after a believer has, after or any human being is time. और कोई भी इंसान या कोई भी मसीह जो है जो उद्धार के बाद अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज है तो वो है वक्त. Amen. Amen. Now listen everybody. आप सभी ध्यान से सुनो. So when there was time, तो जब वक्त था,
these five foolish virgins, they had their priorities wrong. ये 5 मूर्ख जो कुंवारियां थे, उनके क्रम जो उन्होंने लगाए थे वो सब गलत थे. उनके जिंदगी में जो प्राधान्य थे, उनके जिंदगी में जो कुछ भी प्राधान्य थे वो गलत थे. त्यांचे प्राधान्य चुकीचे होते. उनके प्राधान्य जो थे वही गलत थे. When there was time. जब उनके पास वक्त था. Now the Bible says there were 5 foolish and 5 wise. अब बाइबल कहता है कि 5 मूर्ख और 5 सियाने थे. I think the Lord had mercy upon everybody. That's why he said 5 wise and 5 foolish. और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा जो है वो सब पर उसने दया की, इसलिए उसने कहा कि 5 मूर्ख और 5 सियाने. But today's condition is so horrible लेकिन आज के तारीख इतनी बुरी, आज की हालत इतनी बुरी है that I can say there are 2 wise and 8 foolish. मैं ये कह सकता हूँ कि 8 मूर्ख है और 2 ही सियाने हैं. Now listen everybody. अब सभी सुनो. There are 2 wise. 2 सियाने हैं And 8 foolish. और 8 मूर्ख. This is the scenario of the church today. और आज की कलीसिया की हालत ऐसी है. Not our church alone, सिर्फ हमारी ही कलीसिया नहीं, universally. जागतिक तौर पर. Because everybody, Satan has got them caught up. क्योंकि शैतान ने सभी को अटका के रख दिया है. Remember when Israel had to, when God sent Moses with the message of deliverance to tell Pharaoh about the nation of Israel. और याद करो जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा था ये संदेश देकर कि फिरौन को ये बताए कि वो इज़राइल राष्ट्र को छोड़ दे. At that time, when Pharaoh came to know, उस वक्त जब फिरौन को ये पता चला, he increased their labor उसने उनका काम बढ़ा दिया so that they will not go. ताकि वो जा नहीं पाएंगे. Satan's today biggest trap for every single human is शैतान का सबसे बड़ा जाल आज के तारीख में हर एक व्यक्ति के लिए यह है to distract that person. कि उसका ध्यान हटा दे. Today I want you to, we are going to go in some time in the running session. और आज कुछ समय में हम अभिषेक के सत्र में जाने वाले हैं. And I want you today, if you love yourself, और मैं चाहता हूं कि आज अगर आप खुद से सचमुच प्यार करते हो, how many really love yourself? और कितने लोग सचमुच खुद से प्यार करते Don't हैं, put your hands up. आपके हाथ ऊपर मत करो. If you really love yourself, अगर आप सचमुच खुद से प्यार करते हो, the first thing you will do is you will not want to go to hell. और सबसे पहले चीज आप ये करोगे कि आप नरक नहीं जाना चाहोगे. You know, one of the biggest tricks of the enemy is to make you believe there is no hell. और आपको पता है दुश्मन का एक सबसे बड़ा खेल जो है और तरकीब जो है वो ये है कि आपको ये विश्वास दिला दे कि नरक है ही नहीं. सैतानाचं तुमच्या शत्रूचं सगळ्यात मोठं चाल ही आहे की तुम्हाला हा विश्वास पटवून देणं की नरक नाहीये. आणि जर का नरक आहे, and if there is a hell, और अगर नरक है, then how can this good God send such a man like you and me to hell? तो फिर कैसे क्या इतना अच्छा परमेश्वर इंसान को यानी आप और मैं हमें वो नरक भेजेगा? This is the second thing that Satan tells believers. और ये दूसरा चीज है जो शैतान विश्वासी लोगों को कहता है. जर का हा देव एवढा चांगला आहे तर तो मग माणसाला या नरकात का फेकतो? अगर खुदा इतना अच्छा है तो वो इंसान को नरक में क्यों फेंकता है? देव फेकत नाही, सांगा एकमेकाला. एक दूसरे से कहो खुदा फेंकता नहीं है. देव फेकत नाही, खुदा फेंकता नहीं है. मनुष्य स्वतःहून जातो. बोला एकमेकाला. इंसान खुद ब खुद जाता है. Yeah. आमेन. God never throws anybody in hell. और खुदा कभी भी किसी को भी नरक में नहीं फेंकता.
Man goes there. Man wants to go there. इंसान वहां जाता है, इंसान खुद वहां जाना चाहता है. Now, अब I'm just building my message, okay? मैं बस मेरे संदेश को बांध रहा हूँ. Now listen carefully, everybody. आप सभी ध्यान से सुनो. So there are 2 wise and 8 foolish today's scenario. और आज की हालत ऐसी है कि 2 सियाने और 8 मूर्ख है. You know, if the church today announces आपको पता है कि अगर आज कलीसिया ये घोषणा कर दे that we will get anyone married and we will bury anybody, I'm telling you the attendance of the churches will drop down. कि हम किसी की भी शादी लगा देंगे और किसी को भी गाड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि हजेरी जो है वो कम हो जाएगी. चर्च मध्ये जी हजरी आहे, जी उपस्थिती आहे ती एकदम कमी होऊन जाईल. और कलीसिया में आने वाले लोग जो है वो बहुत ही कम हो जाएंगे. का? क्यों? कारण लोकांना मग मयत आणि लग्न ह्या 2 गोष्टींची गरज मुख्यतः असते चर्चची. और लोगों को कलीसिया की जरूरत इसलिए महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि उन्हें शादी करवानी होती है और लोगों को गाड़ना होता है. That's it. बस इतना ही. नाहीतर बाकी सगळं तुम्हाला चर्च काय देतो? और नहीं तो बाकी सब में कलीसिया आपको क्या देती है? Nothing. कुछ भी नहीं. And with online, और अब तो ऑनलाइन है, उसकी वजह से you've got so many preachers talking to you. आपके पास इतने संदेश देने वाले हैं जो आपसे बात कर रहे हैं. Why will you come to a church which will slap you every Saturday? तो आप ऐसी कलीसिया में क्यों आएंगे जहां पर हर शनिवार को आपको थप्पड़ लगाया जाता है? का मी एका कोंबडीला सांगितलं की तुला आम्ही आता कापणार आहे, ती येईल का माझ्याकडे? अगर मैं मुर्गी को ये बताऊंगा कि तुझे अभी काटने वाले हैं, तो क्या फिर वो मेरे साथ आएगी क्या? नाही येणार. नहीं ना. तुम्ही कशाला येताय? तो फिर आप क्यों आते हो? बिर्याणी करायला तुमची? आपकी खुद की बिरयानी बनवा के See, लेने के the लिए. thing is, देखो चीज ये है, people who genuinely love the Lord जो लोग सचमुच खुदा से प्यार करते हैं will go to church. वो कलीसिया जाएंगे. I'm not just talking about our church, okay? मैं बस केवल अपनी कलीसिया के बारे में बात नहीं कर रहा I'm हूँ, talking about the body of Christ today globally. लेकिन मसीह का शरीर जो जागतिक तौर पर है उसके बारे में बात कर रहा हूँ. In most of the, I have got news almost all the churches where you see huge crowds. और मेरे पास ऐसा समाचार है जो कलीसिया आप देखते हो जहाँ पर बहुत भीड़ है, There after the service वहाँ पर लंगर लगता है. और कलीसिया खत्म होने के बाद there is food to eat over there. या सबको खाना दिया जाता है, सगळ्यांना जेवण दिलं जातं. Everyone given food to eat. म्हणून तिथं लोकांची गर्दी असते. इसलिए वहां पर लोगों की भीड़ होती है. That's the reality. और ये सच्चाई है. Today, this word I'm telling you, it's going to really bring an awakening in the body of Christ. और मैं आपको बताता हूँ आज का ये जो शब्द है, वचन है, उसकी वजह से मसीह के शरीर जो है वो सचमुच उठ जाएगी या फिर होश में आ जाएगी. Now listen, everybody. अब सभी सुनो. So now there are 2 wise and 8 foolish. तो अब 2 सियाने हैं और 8 मूर्ख. The current scenario of the body of Christ is we are all sleeping. और मसीह के शरीर के आज की हालत ये है कि हम सभी जन सो रहे हैं. What is the meaning of sleeping? और सोने का अर्थ क्या है? We have lost the rhythm with God. और परमेश्वर के साथ जो तालमेल है वो हम खो बैठे हैं. Yeah, we have lost the walk with God. परमेश्वर के साथ जो हमारा चलना है वो हम खो बैठे हैं. And we are just living in the Lord because we believe in the Lord Jesus Christ. और हम खुदा में बस इस वजह से जी रहे हैं क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं. Now listen, everybody. अब सभी सुनो. This is exactly how Gideon's scenario was, the time of Gideon. और गिदोन के वक्त
ऐसी ही हालत थी। Yeah, the whole nation of Israel had gone away from God. और पूरा इस्राएल राष्ट्र जो है वो खुदा से दूर चले गए थे। Now listen everybody, very, very carefully. और सभी जन ध्यान से सुनो। This was the same nation that was led by a glory cloud and a pillar of fire. और ये वही राष्ट्र है जो महिमा भरा बादल और अग्नि स्तंभ के द्वारा चलाया गया था। And Moses was the one whom God used to lead the whole nation. और मूसा था जिसका परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था इस पूरे राष्ट्र की अगुवाई करने के लिए। Now listen closely. आप सभी ध्यान से सुनो। You know, as they entered into the promised land, और जैसे वो वाचा के भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, it was the tabernacle of Moses that was the sign that God was with the nation of Israel. और वो मूसा का निवास मंडप था, वो मूसा का निवास मंडप ही था कि जो चिन्ह था कि खुदा इस्राएल राष्ट्र के साथ था। Amen. Amen. But as they entered in the promised land, लेकिन जैसे ही वो वाचा के भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, as Joshua and his generation passed away, जैसे यहोशू और उसकी पीढ़ी जो है वो गुजर गए, and all those elders who knew the living God, who knew Yahweh, passed away, और जो सारे पूर्वज जो खुदा को जानते थे, यावे को जानते थे, वो सब गुजर गए। the whole tabernacle was folded and kept in Gilgal for some time. और पूरा निवास मंडप जो है उसे बंद करके गिलगाल के जगह पर कुछ समय के लिए रखा गया था। Then it was shifted to Shiloh for 300 years. और फिर वहां से निकालकर उसे शिलो में 300 साल तक रखा गया। And then from there it went to Nob and to Gibeon. और फिर वहां से वो नोब और गिबोन में चला गया, In different parts. और वो भी अलग-अलग भाग होकर। That means what? इसका अर्थ क्या है? What am I saying, people of God? मैं क्या कह रहा हूं परमेश्वर के लोगों? These people lost the rhythm with God. ये लोग जो है परमेश्वर के साथ जो उनका तालमेल है वही वो खो बैठे। Can you imagine? क्या आप कल्पना कर सकते हो? This was the same nation for whom the great prophet Moses had prayed the prayer unto God that Lord, if you don't come with us, don't take up us hence from this place. और ये वही राष्ट्र है जिसके लिए जो महान भविष्यवक्ता मूसा उसने ये दुआ की थी कि हे परमेश्वर, अगर तेरी उपस्थिति हमारे आगे से नहीं चलेगा, हमारे आगे नहीं चलेगा तो हम यहाँ से नहीं आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहाँ से आगे मत लेके जा। ये मूसा की दुआ थी उस जिंदा खुदा के लिए के सामने। Amen. Amen. It was his prayer. ये उसकी दुआ थी। Then my question is, तो फिर मेरा सवाल यह है, where did the presence go? वो उपस्थिति कहाँ चली गई? Where did the presence go? वो उपस्थिति कहाँ चली गई? You know, listen everybody carefully. और सभी जन ध्यान से सुनो। God came down for the whole nation, not for one man. खुदा जो है पूरे राष्ट्र के लिए नीचे उतर आया, एक व्यक्ति के लिए नहीं। कोई आमेन बोलेगा क्या? आमेन। Yeah, God did not come to save Moses. He came to save the whole nation of Israel. खुदा जो है मूसा को बचाने के लिए नीचे नहीं आया, लेकिन पूरे राष्ट्र इस्राएल राष्ट्र को बचाने के लिए आया था। Moses was already saved. He was living with the Midianites. और मूसा का तो पहले से उद्धार हुआ था और वो मिद्यानी लोगों के बीच में जी रहा था। Amen. Amen. He had also got married to the high priest's daughter. और वो तो महायाजक के बेटी के साथ उसकी शादी भी हो चुकी थी। Amen. He had his own family, well settled. और उसकी खुद की परिवार थी और वो आराम से जी रहे थे। People of God. परमेश्वर के लोगों। But God came down to save the whole nation of Israel, not just Moses. लेकिन खुदा नीचे उतर रहा है पूरे इस्राएल राष्ट्र को बचाने के लिए, केवल मूसा को बचाने के लिए Now नहीं। hear this please everyone. अब कृपया कर सभी जन इसे सुनो। But what happened then to this nation? लेकिन इस राष्ट्र का बाद में क्या हुआ? What happened with them walking with God? और परमेश्वर के साथ उनका जो चलना था उसका क्या हुआ? They lost total rhythm with God. उनका परमेश्वर के साथ जो तालमेल था वो पूरी तरह से वो खो बैठे। Why? क्यों? Because as a whole nation they never seek God. क्योंकि एक पूरा राष्ट्र होकर उन्होंने कभी भी परमेश्वर को नहीं खोजा। Now listen everybody. आप सभी सुनो। There was this tabernacle on whom there would come the glory of God. और वो निवास मंडप था जिसके ऊपर परमेश्वर की महिमा उतर आती थी। Amen. 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 And God would speak to the high priest. और खुदा जो है वो महायाजक से बात करता था। Amen. Amen. And would tell the nation of Israel. और फिर वो जाकर इस्राएल राष्ट्र को बताता था। Amen. Amen. You read the book of Judges. आप न्यायाधीश के
आप शास्त्र किताब को पढ़ो, आप शास्त्र, न्यायों के किताब को पढ़ो, you will not find any mention of the tabernacle. वहां पर निवास मंडप के बारे में कोई भी उल्लेख आपको नहीं मिलेगा. Why so? You will not even find the mention of the word high priest there. ऐसा क्यों, इतना क्यों? वहां पर महायाजक करके एक शब्द भी नहीं है. Why? क्यों? Why? क्यों? Where is that glory cloud? वो महिमा का बादल कहाँ है? It stopped. वो बंद हो गया. When they entered in the promised land, it ceased. और जब वो वाचा के भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, वो बंद हो गया. Where was the pillar of fire? और अग्नि का स्तंभ कहाँ था? When the nation of Israel entered in the promised land, it stopped. और जब इस्राएल राष्ट्र वाचा के भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, वो बंद हो गया. Where was manna? मन्ना कहाँ था? Stopped. रोका गया. The moment they entered in the promised land as a nation, it stopped. जैसे ही वो एक राष्ट्र बनकर वाचा के भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, मन्ना को रुकाया गया. You know why? Ask me the question, please. Somebody ask me this question, why? आपको पता है क्यों? कोई तो कृपया कर मुझे ये सवाल पूछो, क्यों? Q. क्यों? Ah? I will tell you the answer. मैं आपको जवाब देता हूं. Because before they entered in the promised land, they were all led by one man. क्योंकि वाचा के भूमि में प्रवेश करने से पहले वो सभी जन जो है एक मनुष्य द्वारा उनकी अगुवाई की जा रही थी. God would talk to one man and he would talk to the whole nation. और खुदा एक व्यक्ति से बात करता था और वो एक व्यक्ति पूरे राष्ट्र से बात करता था. But God expected growth in his people, in his children. लेकिन खुदा जो है उसके राष्ट्र में, उसके बच्चों में उसने ये अपेक्षा रखी कि ये बढ़ेंगे, बड़े होंगे. Now they will stop looking at me through a man. They will look at me personally. अब वो मेरे पास किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं देखेंगे, लेकिन मेरे पास वैयक्तिक तरीके से देखेंगे. आमेन. व्यक्तिगत तौर के ऊपर व्यक्तिगत देखेंगे. तौर पर वो देखेंगे. प्रत्येक व्यक्ती माझ्याशी जुडेल ही देवाची इच्छा होती ज्यावेळेस ते लोक वचनबद्ध भूमीमध्ये आले. और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि जब वो वचन वाचा के भूमि में आए कि हर एक व्यक्ति जो है उससे अकेले में जुड़ेगा. That is why for many years God did not give them any leader, any one leader. और इसलिए बहुत सालों तक खुदा ने उन्हें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं दिया, एक नेतृत्व करने वाला नहीं दिया. Not even a prophet, not nobody. भविष्यवक्ता भी नहीं, कोई भी नहीं. Not even a priest, nobody. याजक भी नहीं, कोई भी नहीं. Because he expected as a nation, now they will seek my face. क्योंकि परमेश्वर ने ये अपेक्षा रखी कि एक राष्ट्र होने के नाते अब ये लोग मेरे चेहरे को खोजेंगे. Amen. Amen. But people of God, लेकिन परमेश्वर के लोगों, they didn't do that. उन्होंने ऐसा नहीं किया. They forgot the tabernacle. वो निवास मंडप को ही भूल गए. Do you know the meaning of the word Shiloh means what? आपको पता है शिलो इस शब्द का अर्थ क्या है? Means peace. इसका अर्थ है शांति. They had the tabernacle resting in Shiloh, but they had no peace in their land. और निवास मंडप जो है वो शिलो में रखा गया, लेकिन उनके भूमि में कोई शांति नहीं थी. निवास मंडप शिलो में आराम कर रहा था, लेकिन उनके इज़राइल राष्ट्र में कोई शांति नहीं थी. That's what happens when you try to seek prosperity aside from God. और यही होता है जब आप बरकत पाने की कोशिश करते हैं, वो भी खुदा को छोड़. ज्यावेळेस तुम्ही ह्या बायबलला टाळता, ह्या जिवंत परमेश्वराच्या वचनाला सोडता आणि स्वतःला समृद्ध करायला बघता, तुमच्या जीवनामध्ये अशांतीशिवाय काही येणार नाहीये. तुम्ही शांतीशी लग्न कराल पण ती अशांती राहील. और जब आप इस बाइबल को, इस वचन को छोड़ देते हो और इसके साथ जिंदगी नहीं बिताते हो, उस वक्त आप शांति से शायद शादी करोगे और बरकत पाने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी और बरकत नहीं मिलेगी. लग्न करायच्या आधी त्या मुलीचं नाव शांती राहील, पण लग्न झाल्यानंतर ते नाव अशांती होईल. और शादी करने से पहले उस लड़की का नाम जो है वो शांति थी, लेकिन शादी होगा, लेकिन शादी करने के बाद उसका नाम जो है अशांति हो जाएगी. Why? क्यों? Because God is not there. क्योंकि खुदा वहां पर नहीं है. People of God, परमेश्वर के लोग. today when we go in the earning session, I want you to introspect your life, to which battles you are facing even today. और आज जब हम अभिषेक के सत्र में जाएंगे, मैं ये चाहता हूं कि आप खुद के जिंदगी में जाकर देखें और जो युद्ध
आप आपके जिंदगी में आज लड़ रहे हो वो भी आप देखें. People of this age category may feel, I have no enemies, I have no battles, I have no turmoil, I have no torment, I have no storm in my life. I am so happy. और जो बच्चे इस उम्र के हैं उन्हें यह लगता होगा कि मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरे जिंदगी में कोई युद्ध नहीं है, मेरे जिंदगी में कोई छल नहीं है, मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है और मुझे कुछ नहीं करना है. मुझे कोई तूफानों का सामना नहीं है, मुझे कोई छल नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरे जिंदगी में इतनी शांति है. मैं आपको बताता हूं ये क्यों है. क्योंकि ये समय आपको परमेश्वर शांति का दे रहा है ताकि इन समयों में आप सही कदम उठाए. आमेन. देव तुम्हाला का शांती देते माहिती आहे का तुम्हा तरुणांना. कारण देवाची इच्छा आहे की ह्या प्रसंगामध्ये ह्या काळामध्ये ज्या वेळेस तुमच्या जीवनामध्ये कोणतं वादळ नाहीये तर तुम्ही ह्या शांतीच्या समयामध्ये योग्य पावलं उचलावे. और खुदा आपको शांति क्यों दे रहा है पता है कि इस वक्त में जो आपके पास शांति है आप इस वक्त का पूरा पूरा फायदा उठाए और आप सही कदम उठाए. योग्य ते पेरणी करावी और जो सही बीज बोना है वो आप बोओगे. सो द राइट थिंग्स. और बोगे सही चीज आप बोगे. कोणी म्हणेल आता चुकीच्या गोष्टी करून बसलेले आता करायचं काय. मग योग्य करायला अजूनही वेळ गेलेली नाही. और कोई कहेगा कि जो गलत है गलत सलत है वो हमने सब कर बैठे हैं लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं है, अभी भी आप सही कर सकते हो. जोपर्यंत तुमच्या नाकपुड्यामध्ये श्वास आहे तोपर्यंत योग्य गोष्ट करायला तुम्हाला कोणी अडू शकत नाही. और जब तक आपके नथनियों में सांस है तब तक आपको सही करने से कोई रोक नहीं पाएगा. आमीन. Now people of God, अब परमेश्वर के लोगों, for people like this, it's this peace time. और ऐसे लोगों के लिए आज का वक्त जो है वो शांति का वक्त है. Don't invite the enemy in your life in this age. और इस उम्र में दुश्मन को आपके जिंदगी में स्वागत मत करो. Don't open your doors for the enemy to come and plunder what God is going to give you, is going to give you in the near future. और आपके जिंदगी का द्वार दुश्मन के लिए न खोलो ताकि वो आकर वो सब कुछ लूट ले जो खुदा आपको देने वाला है, जो खुदा आपको भविष्य में देने वाला है. Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. आमीन. Now listen carefully. Sit down. Thank you very much. You listen everybody carefully now. और आप सभी जन ध्यान से सुनो. So the nation of Israel had folded the tabernacle and packed it. Can you imagine this? तो इस्राएल राष्ट्र जो है वो पूरे निवास मंडप को बांध कर घड़ी करके बांध कर रख दिया था. क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? And they were living like headless chickens. और वो ऐसे जिंदगियां जी रहे थे मुर्गियों समान जिनका सर ही नहीं है. मुंडकं नसलेल्या कोंबड्यांसारखं ते राष्ट्र जगत होतं. और वो पूरा राष्ट्र जो है ऐसे मुर्गियों समान जी रहे थे जिनका सर ही नहीं है. Crazy. पागल. No order. कोई क्रम नहीं. No prosperity. कोई बरकत नहीं. No good health. और अच्छी सेहत नहीं. No peace. कोई शांति नहीं. No joy. कोई आनंद नहीं. They would plant that crop and the enemy would come and steal it. वो बीज बोते थे और दुश्मन आकर फसल ले जाता था, चुरा कर ले जाता था. The animals got no feed to eat. और उनके जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला. कुछ नहीं मिलता था. कुछ नहीं मिलता था. They would labor and all it would be stolen by the enemy. और वो मेहनत करते थे लेकिन सब कुछ दुश्मन चुरा ले जाते थे. Read Deuteronomy 28, everybody. That was happening with the nation of Israel in the book of Judges. और व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय आप सभी जन पढ़ लो. और इजराइल के राष्ट्र के साथ न्यायों के वक्त में यह सब कुछ हो रहा था. They would build houses. वो घर बांधते थे. And the enemy would come and take it away, and they would have to go and live in caves in the mountains. और दुश्मन आकर उनसे वो लूट लेते थे और इन लोगों को पर्वतों पर जाकर गुफाओं में रहना पड़ता था. Then God began to choose some people
फिर उसके बाद खुदा जो है कुछ लोगों को चुनने and लगा began to use them. और फिर उसका इस्तेमाल वो करने लगा उनका इस्तेमाल वो करने लगा to set the nation of Israel free from their enemy. ताकि इज़राइल राष्ट्र जो है उनके दुश्मनों के चंगुल से आजाद हो जाए. Now listen everybody. आप सभी जन सुनो. But then what happened? God's eyes came upon a man called Gideon. लेकिन फिर क्या हुआ? परमेश्वर की नजर गिदोन नामक एक व्यक्ति पर आ गया. Now listen carefully. आप सभी ध्यान से सुनो. When I hear the name Gideon, जब मैं ये नाम गिदोन सुनता हूँ, it is not a very good time. ये एक अच्छा समय नहीं है. Israel, the whole nation was under great fear. और पूरा इज़राइल राष्ट्र जो था वो एक बड़े भय में था. They were under the captivity of their enemies. और वो उनके दुश्मनों के चंगुलों में थे. And Gideon was given by God a mandate to set the nation of Israel free. और खुदा ने गिदोन को एक कार्य दिया था कि वो पूरे इज़राइल राष्ट्र को आजाद करे. Now listen. अब सुनो. So what he did was, तो उसने क्या किया वो ये है, he summoned up a big army. और उसने एक बड़ा सेना जो है उसने तैयार किया. And when he made that army, और जब उसने वो सेना तैयार किया, God made him minus many soldiers from that army. और खुदा ने उस सेना से बहुत सारे लोगों को खुदा ने उसे निकालने लगाया. And there remained with him only 300 soldiers. और फिर उसके बाद उसके साथ केवल 300 लोग ही बचे. Only 300 soldiers. सिर्फ 300 सैनिक. That's all. बस इतना ही. And then God tells him, और फिर खुदा उससे कहता है, go and fight now. अब जाकर लड़. Now listen. अब सुनो. You know what was the biggest announcement that Gideon did to his army? और आपको पता है कि गिदोन ने उसके सेना के सामने सबसे बड़ी घोषणा क्या की थी? And that was, और वो ये थी, all those who are not willing to fight, you can go home. जो सभी जन लड़ने के लिए तैयार नहीं है या फिर आपकी इच्छा नहीं है, आप घर जा सकते हो. And a big chunk of his army went home. और उसके सेना से बहुत सारे लोग जो है वो घर चले गए. Let me picturize it for today's time. और चलो इसी बात को आज के तारीख में कैसा है वो मैं दिखाता हूँ. Yeah, today's time. आजच्या काळामध्ये आज मी मराठीत सांगतो, नीट ऐका. और आज के तारीख के बारे में ध्यान से सुनो. ज्या लोकांना चर्चला यायची इच्छा नाहीये ते घरात बसू शकता. और जिन लोगों को कलीसिया आने की इच्छा नहीं है, आप घर पर बैठ सकते तरी हो. मी तुमचं लग्न लावेल, तरी मी तुम्हाला गाडेल, काय टेन्शन नाही, आराम करा. और फिर भी मैं आपकी शादी लगाऊंगा, फिर भी मैं आपको गाड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं. आणि तुमच्या जीवनामध्ये काही प्रॉब्लेम आला तर मी धावत पळत येईल, काही टेन्शन नाही. और आपकी जिंदगी में अगर कोई भी समस्या आ जाए, कोई टेंशन, मैं आपके लिए भाग दौड़ कर आ जाऊंगा. तुम्हाला सांगू द्या, पुष्कळ जण ऑनलाईन बघतील. ऑनलाईन बघत आहे बघा. और मैं आपसे कहता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन देख रहे हैं. देखो ऑनलाइन देख रहे हैं. का ते बघतील माहितीये का? कारण पास्टरांनी अनाउन्समेंट करून टाकली, त्या टेन्शन नाही आता. वो क्यों देखेगा ऑनलाइन पता है क्या? क्योंकि पास्टर ने तो घोषणा कर दिया, अभी कोई टेंशन नहीं. आता नीट ऐका, परत एकदा आपल्या चर्चच्या सामानाला हलवायचे. ज्या तरुणांना इच्छा असेल त्यांनी यावं, बाकीच्यांनी नाही आलं तरी चालेल, माझ्याकडे रोबोट आहेत ते करतील. और कलीसिया के सामान को अब हिलाना है, तो जो जवान है जिनकी आपकी इच्छा है, जो जवान है, जो जवान जिनकी इच्छा, जिनकी मंशा है, और जो जवान जिनकी इच्छा है कि वो आए और इसमें हाथ लगाए, तो वो आए. बाकी के आप जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास वैसे भी रोबोट है. आणि तुम्हाला सांगू द्या, पुष्कळ आनंदाने निघून जातील घरी. और मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे खुशी खुशी अपने अपने घर चले जाएंगे. का माहितीये का? क्यों पता है क्या? हा गिदोनाचा काळ आहे. ये गिदोन का वक्त है. एकमेकावर बोला, देवाप्रती प्रीती थंड झालेली आहे. बोला. और एक दूसरे से कहो कि खुदा के प्रति प्यार जो है वो ठंडा हो चुका है. बोला 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 बोला. देवा प्रति प्रीति ठंड झालेला है. थंड झालेली आहे. खुदा के तरफ प्यार जो है वो ठंडा हो चुका है. इट्स बिकम कोल्ड. वो ठंडा हो चुका है. असं एसी मध्ये कसं थंडी वाजती तशी थंड झाली. एसी में कैसा ठंडा लगता है वैसा ठंडा. And you know, listen, this is that exact situation that was happening in the nation of Israel. और आपको पता है यही हालत इज़राइल राष्ट्र में हो रहा था.
But in our church, it's a different story. लेकिन हमारी कलीसिया में कहानी ही अलग है. We do have the pillar of fire and the pillar of cloud visiting us every Saturday. और हमारे कलीसिया में वो अग्नि का स्तंभ और महिमा का बादल हर शनिवार को उतर आता है. Amen. अजूनही आपल्या मंडळीवरती देवाचं गौरव प्रत्येक मीटिंग मध्ये उपस्थित असतं. देवाला धन्यवाद देऊया और आपण. आज के तारीख में भी हमारे कलीसिया के हर एक सभा में खुदा की महिमा उतर आती है. इसलिए सभी जन मिलकर परमेश्वर को महास्तुति के हाथ देंगे. Come on everybody. Amen. हा एक फार मोठा सन्मान आहे. ये एक बहुत बड़ा सम्मान है. आमेन. अमेन 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 अमेन. Now listen carefully everyone. अब सभी ध्यान से सुनो. So this God's direction was given by the cloud and the fire. और खुदा के तरफ खुदा की ओर से दिशा जो है वो बादल के द्वारा और वो स्तंभ के द्वारा दिया जाता था, अग्नि के द्वारा दिया जाता था. Amen. Amen. So now in today's scenario, once again, तो फिर आज के हालत में या फिर आज के हालात में फिर एक बार we have got 2 wise and 8 foolish. हमारे पास 2 सियाने और 8 मूर्ख है. Whom will you associate yourself with? आप खुद को किसके साथ जोड़ोगे? Now all will say the wise. अब सभी कहेंगे सियाने. But in practical life, लेकिन वास्तविक जीवन में whom do we associate with? हम किसके साथ खुद को जोड़ते हैं? कोणाची संगत आपण धरतो? हम किसके संगति में रहते हैं? मूर्खाची का शहाण्याची? हा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे. मूर्खों की या सियानों के साथ ये निर्णय हमें लेना है. आजच्या तारखेला तुम्हाला आणि मला हे समजणं फार महत्वाचं आहे की मी मूर्ख आहे का शहाणा आहे. और आज के तारीख में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझ ले कि क्या मैं मूर्ख हूं या सियाना हूं. मी तुम्हाला एक घटना सांगत आहे. मी स्पष्ट बोलत नाहीये. इशाऱ्यांनी समजून घ्यायचं. लहान लेकरं बसलेले आहेत. और मैं आपको एक घटना बताता हूं और जो सीधा सीधा बात जो है मैं नहीं बताऊंगा लेकिन इशारों से बताऊंगा कि क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी हैं. सगळ्यांनी नीट ऐका. सभी जन ध्यान से सुनो. माझ्यासमोर 3 वेगवेगळे व्हिडिओ आले. 3 वेगवेगळे व्हिडिओ. और मेरे सामने 3 अलग अलग वीडियो आए की त्या व्हिडिओजमध्ये म्हणजे भारतामध्ये, पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये त्या व्हिडिओजमध्ये 3 वेगवेगळे पुरुष जे आहेत ते प्राण्यांबरोबर गैरव्यवहार करत आहेत. और भारत में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में 3 अलग अलग पुरुष जो है वो जानवरों के साथ गलत सलत कर रहे हैं. या वाईट दुष्कर्म कर रहे हैं कुत्र्यांबरोबर और कुत्तों के साथ. आणि त्यांना लाईव्ह पकडले. और उन्हें लाइव पकड़ा गया है. विचार करायची गोष्ट आहे और ये सोचने की बात है की मनुष्य हा कोणत्या स्तराला पोहोचलेला आहे. कि इंसान जो है वो किस स्तर पर आ चुका है. सदोम आणि गमोरा. सदोम और गमोरा की तरफ. नोहाचा काळ आहे हा. ये नूह का वक्त है. प्रभू येशू म्हटलेला आहे देवाच्या माणसाच्या पुत्राचं येणं, द सन ऑफ मॅन्स अराइवल विल बी लाइक द टाइम्स ऑफ नोहा. और प्रभु ने कहा है कि मनुष्य का पुत्र का आना जो है, खुदा का बेटा का जो आना का जो वक्त है वो नूह के वक्त के समान होगा. नोहाच्या काळामध्ये सुद्धा अशाच घाणेरड्या गोष्टी होत होत्या. और नूह के वक्त भी ऐसे ही गंदी चीजें हरकतें होती थी. आणि आज रस्त्यावरती होत आहे. पुण्यामध्ये, मुंबईमध्ये, सोसायट्यांमध्ये होत आहे रस्त्यावर. और आजकल तो रस्ते पर ये हो रहा है. पुणे में, मुंबई में, सोसाइटियों में ये रस्ते पर हो रहा है. साईडला ज्या ट्रक आणि बस पार्क होतात त्याच्या मागच्या बाजूला हे कार्यक्रम होत आहेत. हे लक्षात ठेवा. मनुष्य एवढा खाली पडलेला आहे. और रास्ते के बाजू में जो ट्रक खड़े रहते हैं या फिर बस खड़े रहते हैं उसके पीछे जाकर ये सारे हरकतें होती है और इंसान जो है इस हद तक गिर चुका है. आता तुम्हाला मला सांगू द्या, ही परिस्थिती आज जागतिक स्तरावरती आहे. और मुझे आपको बताने दो, ये जो हालत है आज जागतिक तौर पर हो रहा है. निसर्ग कणत आहे निसर्ग. और निसर्ग जो है वो रो रही है. आणि का तो कणत आहे की हे परमेश्वरा तारण कर. और क्यों रो रही है? और ये रो रही है कि ए खुदा उद्धार कर. आता नीट ऐका सगळ्यांनी. अब सभी ध्यान से सुनो. तर मला माहितीये का, ज्या वेळेस माणूस ओरडतो ना त्यावेळेस कदाचित देव एवढं ऐकणार नाही. और आपको पता है क्या कि जब इंसान को
पुकारता है ना तो खुदा इतना नहीं सुनेगा। पण ज्यावेळेस जे न बोलणारा जो निसर्ग आहे, ज्यावेळेस त्याची आरोळी स्वर्गात जाते, त्यावेळेस देव उत्तर देतो. लेकिन जब न बोलने वाला ये निसर्ग जो है, जब ये पुकारते हैं, उनके पुकार को खुदा जवाब देता ही है. कोणीतरी मला विचारलं होतं, ज्यावेळेस जपानमध्ये सुनामी आली होती त्यावेळेस मला विचारलं होतं की देव एवढा निर्दय कसा काय की त्यांनी अख्ख्या एका देशाला सुनामीमध्ये खल्लास करून टाकलं. और जब जापान देश में सुनामी आया था, उस वक्त किसी ने मुझसे पूछा था कि खुदा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसने सुनामी के द्वारा एक पूरे देश को उसने तहस नहस कर दिया. आणि त्यावेळेस माझ्याकडे एक उत्तर त्यांच्याकडे असं होतं, और उस वक्त मेरे पास एक जवाब उसके लिए ऐसा था जपान मधला सगळ्यात चविष्ट डिश कोणता? कि जापान में सबसे स्वादिष्ट पकवान या खाना कौन सा है, ते म्हणजे और वो है एका लेकराचा, लहान बाळाचा भेजा. एक छोटे बच्चे जो पैदा हुआ छोटा बच्चा जो है उसका भेजा. म्हणजे काय, इसका अर्थ क्या है? हॉटेलच्या वरती रूम्स असतात इसका अर्थ यह है कि वो होटल के ऊपर कमरे होते हैं आणि त्या हॉटेल्स मध्ये तिथं मुली असतात और उस कमरों में वहां पर लड़कियां रहती आणि है. त्यांचं काम काय असतं? और उनका काम क्या रहता है? गरम गरम बाळ देणं. और गरम गरम ताजा बच्चे देना. आणि मग तो कुक काय करतो? और फिर जो खाना बनाने वाला वो क्या करता तो है? मुंडकी कापतो, तो भेजा फाडतो, उघडतो, चविष्ट जे भेजा बनवतो आणि त्या येणाऱ्या कस्टमरला तो सर्व करतो. और वो उसके बच्चे का गला काटता है, उसका भेजा उसमें से निकालता है और उसे बहुत निकालता नहीं, उसी में वो पकाता है, उसके कवटी में उसके पकाता कवटी में ही उसे पकाता है, स्वादिष्ट बनाता है और कस्टमर को परोसता है. है. आणि त्या लोकांना ते आवडतं. सगळ्यात चविष्ट डिश आणि महागडा डिश आहे. और उन लोगों को वो पसंद है और ये सबसे बेहतरीन और सबसे महंगा डिश है. आणि तुम्हाला सांगू द्या, और मुझे आपको बताने दो, आता प्रश्न विचारा की देवाने अख्ख्या राष्ट्राचा नाश का केला? अब ये सवाल पूछो कि खुदा ने पूरे राष्ट्र का ही नाश क्यों किया? ते लहान लेकरं बोलू शकत नाही पण आरोळी चाललेली आहे. और वो छोटे बच्चे जो है वो पुकार नहीं सकते थे, लेकिन उनकी पुकार जा रही थी. तुम्हाला मला सांगू द्या, हा काळ तुम्ही मूर्ख कुमारांसारखं राहून चालणार नाही. और मुझे आपको बताने दो कि इस वक्त में आप मूर्ख कुंवारियों की तरह रहकर चल नहीं सकते. तुम्हाला सांगू द्या काय याचं मागचं कारण का? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या है. ज्यांना पवित्र आत्मा नाही मिळालेला त्यांनी तर सगळ्यात जास्ती मोठा रेड लाईट डोक्यावर ठेवून प्रार्थनेत बसायचं दिवस आणि रात्र. और जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है वो तो सबसे ज्यादा अपने सिर के ऊपर लाल बत्ती लगाकर ज्यादा से ज्यादा दुआ में बैठे. मी कालच एका भावाला सांगत होतो की जो व्यक्ती चार्ली कर्क हा व्यक्ती मेला. और कल ही मैं एक भाई को बता रहा था कि ये चार्ली कर्क, ये बंदा जो मर गया, तो बिलीवर होता, वो मसीह था, वो विश्वासी था. त्याला एका गे माणसाने गोळीने उडवलं और उसे एक गे इंसान ने गोली से मार दिया. आणि तो तुम्हाला सांगू द्या अँटी क्राइस्ट हा गे आहे. और मुझे आपको बताने दो, मसीह विरोधी जो है ये गे है. त्याचा आत्मा आहे आणि आजकाल पुष्कळ लोक गे बनत चाललेले आहेत. और वो उसका एक आत्मा है और आज के तारीख में बहुत सारे लोग जो है वो गे बनते जा रहे हैं. चांगले चांगल्या मुली, चांगले चांगले मुलं आज गे बनत चाललेले आहेत. और अच्छे अच्छे लड़कियां और लड़के वो आज के तारीख में गे बनते जा रहे हैं. आणि त्यांना चांगले सरळ माणसं आवडत नाही. और उन्हें अच्छे सीधे लोग जो है पसंद नहीं आणि है. त्यांच्या विरोधात जो जातो ते लोक सरळ त्या व्यक्तीला मारून टाकतात. और उनके विरोध में जो जाता है ये लोग सीधे सीधे उन्हें मार देते हैं. इंडियामध्ये असं काय अजून पण झालेलं नाहीये, पण अमेरिकेमध्ये तर गन घेऊन डायरेक्ट उडवतात. और भारत में अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अमेरिका में गन लेके सीधा उड़ा देते हैं. कारण तिथं गन कोणाकडेही आहे. क्योंकि वहां पर पिस्तौल किसी के पास भी होता है. आता नीट ऐका आप सगळ्यांनी. सब ध्यान से सुनो. मी त्या भावाला म्हणालो, मैं उस भाई से मैंने ये कहा, जर का त्या चार्ली कर्कला पवित्र आत्मा मिळालेला असेल तर प्रभू येशू त्याला स्वर्गात घेईल. अगर चार्ली कर्क को पवित्र आत्मा मिला होगा तो खुदा उसे स्वर्ग में लेगा, नाही तर नहीं तो मला नाही माहिती. मुझे नहीं पता. जग त्याला म्हणत असेल रक्तसाक्षी रक्तसाक्षी रक्तसाक्षी, पण प्रभू येशू म्हणतो का हे महत्वाचं आहे. और पूरा जग जो है, पूरी दुनिया जो है उसे कहते हैं कि वो एक रक्त साक्षी बना है, लेकिन क्या खुदा उसे ऐसा मानता है? प्रभु यीशु म्हणतो का? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है क्या? प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है क्या? बहुत ही अनिवार्य है. हे फार महत्वाचं आहे. ये मायने रखता है. म्हणून पवित्र आत्मा मिळवणं आणि त्याला प्रज्वलित ठेवणं, इसलिए पवित्र आत्मा पाना और उसे जलते हुए रखना. ज्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला आहे, जिन्हें पवित्र एक मिनिट मी तुम्हाला जरा समजून सांगतो.
मैं आपको समझा के बताता हूँ। नरकामध्ये ना स्तर आहेत स्तर. और नरक में भी अलग अलग स्तर है। हां. हाँ, एका ठिकाणी ज्या लोकांना पवित्र आत्मा नाही मिळालेला, ज्याने टंगळमंगळ केलेली आहे, ते लोक तिथं राहणार. और जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला है और वो ऐसे ही जिंदगी जी रहे थे, उन्हें एक जगह पे रखा जाएगा। ज्यांना पवित्र आत्मा मिळालेला आहे तरी त्यांनी त्यांचे देहाच्या वळवळी बंद नाही केल्या आणि शेवटी पवित्र आत्मा त्यांना सोडून निघून गेला, त्यांचा एक वेगळा लेवल आहे. और जिन्हें पवित्र आत्मा मिला था, लेकिन उन्होंने उनकी जिंदगी जो है ऐसे ही बिताया और पवित्र आत्मा को उनमें रखा नहीं, और पवित्र आत्मा उन्हें और उन्होंने शरीर के कामों को छोड़ा नहीं और वैसे शरीर के कामों करते रहे. में करते रहे। उन्हें उनके लिए एक अलग जगह है जिन्हें पवित्र आत्मा छोड़ के गया। हां, आता नीट ऐका. अब ध्यान से सुनो। ह्यांचा छळ हा ते लोकांना, म्हणजे त्या लोकांना तो छळ होणार आहे ना, अनंतकाल ते अनंतकालपर्यंत तो ह्या छळापेक्षाही भयानक असणार आहे. और इन लोगों पर जो छल होने वाला है, फिर अत्याचार जो होने वाला है ना, वो इन लोगों से कम होगा। वो भी इन लोगों से ज्यादा होगा. माफ कीजिएगा, इन लोगों से इनका अत्याचार ज्यादा होगा, वो भी अनंत काल से अनंत काल तक। का? क्यों? कारण ह्यांना पवित्र आत्मा, जीवनाचा आत्मा मिळून सुद्धा ह्यांनी तो गमावला. क्योंकि इन्हें पवित्र आत्मा मिला था, जिंदगी का जीवन का आत्मा मिला था, इसके बावजूद वो उसे खो बैठे। तर मी जर का पवित्र आत्म्याने भरलेलो आहे, तो अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं आणि मला बायबल वाचायला आवडत नाहीये, और अगर मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, फार मोठी धोक्याची घंटी आहे. तो फिर ये एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी बज रही है। जर का मी पवित्र आत्म्याने भरलेलो आहे अगर मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं आणि मला जर का प्रार्थना करायला मूड नाहीये, और अगर मुझे प्रार्थना करने का मूड ही नहीं है, फार मोठी धोक्याची घंटी आहे. तो बड़े खतरे की घंटी बज रही है। आणि तुम्हाला सांगू द्या, प्रभू, लोक म्हणतात ना, प्रभू येशू का येत नाही, का येत नाही, का येत नाही. और लोग कहते हैं ना कि प्रभु यीशु क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो ह्यासाठीच नाही येते, इसी वजह से वो नहीं आ रहा है, कारण त्याला दिसतंय वरतून. क्योंकि उसे ऊपर से दिखता है। जर का मी आलो अगर मैं आऊंगा तर हे लोक खाली जातील, तो ये लोग नीचे ही रहेंगे, खाली जातील. नीचे जाएंगे। म्हणून तो येत नाही. बोला एकमेकाला, इसलिए वो नहीं आ रहा है। एक दूसरे से कहो, म्हणून तो येत नाही. बोला, इसलिए वो नहीं आ रहा है। तुझ्यासाठी तो येत नाही. बोला, तेरे लिए वो नहीं आ रहा है। बोला एकमेकाला, तेरे लिए नहीं आ रहा है। तुझ्यासाठी तो येत नाहीये. आपके लिए वो नहीं आ रहा है। बोला एकमेकाला, आपके लिए वो नहीं आ रहा तुझे है। बचाने के लिए नहीं आ रहा है. आपको बचाने के लिए वो नहीं आ रहा तुला है। वाचवायला तो येत नाहीये. बोला, आपको बचाने के लिए वो नहीं आ रहा है। तुला वाचवायला तो येत नाहीये. आपको बचाने के लिए वो नहीं आ रहा है, का त्याला माहितीये तो आला तर गेले. क्योंकि उससे पता है कि अगर वो आ गया तो खत्म। तुम्हाला मला सांगू द्या, तुम्हाला माझे शब्द आठवतील. जर का तुम्ही स्वर्गारोहणानंतर खाली राहिला, मी तुम्हाला खरं खरं सांगतो, देवच तुम्हाला मदत करो. और देखो, आपको मेरे अल्फाज याद आएंगे। स्वर्गारोहण होने के बाद अगर आप खाली ही नीचे यहीं पर रहोगे तो खुदाई आपको बचाए। मी तर नसणार इथं. मैं तो यहाँ पर नहीं रहूंगा, माझ्या घरावर तुम्ही बिंदास कब्जा करून राहू शकता. और मेरे घर पर कब्जा कर कर बिंदास आप रह सकते हो। माझ्या गाड्या वापरा, घोडे वापरा, काय वापरायचं वापरा, मला काय टेन्शन नाही. मेरे गाड़ियों का इस्तेमाल करो, घोड़ों का इस्तेमाल करो, जो इस्तेमाल करना है सब कुछ इस्तेमाल करो, कोई टेंशन नहीं। माझा लॅपटॉपचा पासवर्ड पण तुम्हाला देऊन जाईल. काय और मेरा लैपटॉप का पासवर्ड मैं आपको दे के चला जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं। बिंदास राहा, हॅपी राहा. बिंदास रहो, खुश रहो। जेवढ्या दिवस राहता येईल तेवढ्या दिवस. जितने दिन खुशी से रह पाओगे उतने दिन। तुम्हाला माहिती आहे, भारत हा जगातला एकमेव असा पहिलं राष्ट्र जे पूर्ण UPI पेमेंटवर गेलेलं आहे. पूर्ण UPI. आपको पता है कि भारत देश जो है ये एक ऐसा देश है जो पूरा देश UPI पेमेंट पे चला गया है। दैट मीन्स वी डोंट नीड कैश एनी मोर. इसका अर्थ यह है कि इससे आगे हमारे पास पैसे यानी कागज का पैसे की जरूरत है ही नहीं। तुला पगार मिळतो का? हो, कसा मिळतो? तुझे पगार मिलता है, कैसे ऑनलाइन. मिलता है? ऑनलाइन. म्हणजे तुला फक्त तुझ्या बँकेच्या ॲपमध्ये आकडे दिसतात, राईट? इसका अर्थ यह है जब तुझे तनख्वाह आती है तेरे बैंक के ऐप में सिर्फ तुझे आंकड़े दिखते हैं, सही, अंक दिखते हैं, सही। बघा, देखो, एक काळ होता आपले आई वडील पैसे मोजायचे. और एक वक्त था जब अपने माँ बाप जो है वो पैसे
गिनते थे। अमेन Amen. आज आम्हाला फक्त ऍप वरती आकडे दिसतात. और आज की तारीख में हमें बस ऐप पर आंकड़े दिखते, अंक दिखते हैं। कोणी जर काहीचा मोबाईल हॅक केला तर हिच्या अकाउंट वरती ते लोक दाखवतील तुला 20 करोड मिळालेले आहेत. और कोई अगर इसके अकाउंट को हैक करेगा तो उन्हें उसके ऐप में दिखेगा कि उसे 20 करोड़ मिल चुके हैं पगार पगार। किती खुश होईल. कितने खुश हो जाएंगे ये। म्हणजे आकड्यांबरोबर आपण काहीही करू शकतो. इसका अर्थ है कि अंकों के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। अमेन आमेन। थिंक अबाउट इट. इसके बारे में सोचो। आज जर का एका माणसाने निर्णय घेतला, एकाच माणसाने, आज अगर एक व्यक्ति ने ये निश्चय किया, जे लोक माझ्यासमोर नमत नाही सगळ्यांचे अकाउंट फ्रीज. जो मेरे सामने नहीं झुकेंगे उनके सबके अकाउंट बंद या फ्रीज, काय कराल तुम्ही? आप क्या करोगे? तुम्हाला माहिती आहे आपको पता है ॲमेझॉन मधले जे नद्या आहेत, नद्या तिथं एवढ्या वर्ष कोणीच गेलेलं नाहीये. और अमेज़न जंगलों के नदियां जो है, नदियां वहां पर आज तक कोई भी नहीं गया है। पण लेकिन पुष्कळ राष्ट्रांनी त्याची मॅपिंग करून टाकली आहे सॅटेलाइट थ्रू. लेकिन बहुत सारे राष्ट्रों ने उन पूरे जंगलों को आंक लिया है, वो भी सैटेलाइट के द्वारा। म्हणजे जर का आपण तिथं पळत जरी गेलो, यानी अगर हम वहां पर दौड़कर चले भी गए, कसं बस पोहोचलो, कैसे ना कैसे करके वहां पर पहुंच गए, ख्रिस्त विरोधी पासून स्वतःला वाचून पळालो गेलो, और मसीह विरोधी से खुद की जान बचाकर भागकर वहां चले गए, तिथं पण आपल्याला पकडतील. वहां पर भी हमें पकड़ेंगे। म्हणजे लपायला जागा नाही उरली. थोडक्यात सांगण्याचा अर्थ माझा तो आहे. और मेरा कहने का मतलब यह है कि छुपने की कोई जगह नहीं बची। आता बघा किती लोकांना माहिती आहे इलेक्ट्रिक गाड्या येतात. अब कितने लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक के गाड़ी आ रहे हैं? सगळ्यांना माहिती आहे राईट. सबको पता है, सही। तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रिक गाडीमध्ये एक स्पेशल सर्किट असतं. आपको पता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक स्पेशल सर्किट है। जर का तुम्ही गाडीचा EMI चुकवला, अगर आपने गाड़ी का EMI नहीं भरा, बँक गाडी लॉक करते. और बैंक वाले जो है वो गाड़ी को लॉक कर देते हैं त्यांच्या सर्व्हरमधून. उनके सर्वर के द्वारा। तुम्ही गाडी स्टार्ट पण करू शकत नाही. आप गाड़ी चालू भी नहीं कर पाओगे। म्हणजे कंप्लीट कंट्रोल. यानी पूरा नियंत्रण। सांगा एकमेकाला कंप्लीट कंट्रोल. एक दूसरे को पूरा नियंत्रण, पूर्ण नियंत्रण. बोला पूरा नियंत्रण। आता हळूहळू डिझेल पण मिळणं बंद होणार, पेट्रोल. एका माणसानी, गुजरातमधल्या माणसानी पाण्यावर म्हणजे पाणी भरल्याने गाडी चालू होईल, गाडी चालेल असं संशोधन केलं. और कुछ दिनों में डीजल बंद हो जाएंगे, पेट्रोल बंद हो जाएगा। गुजरात के राज्य में एक इंसान जो है उसने पानी पे चलने वाला ऐसा गाड़ी उसने निकाला है, इजाज किया उसका। इंजिन तयार केली, तसं बनवलं, और उसने इंजन वैसे तैयार किया, जैसे उसने बनाया वैसा बनाया है। तर माणूस गायब, त्याचं संशोधन गायब, सगळं गुल. वो आदमी गायब, उसका पूरा जो उसने संशोधन किया है या फिर इजाद किया है वो सब कुछ गायब। का? क्यों? कारण जर का पाणी भरून माणसं गाडी चालायला लागले तर लोक कुठे कुठे पळून जातील. क्योंकि अगर पानी भरकर गाड़ी चलाने लगे तो लोग कहाँ कहाँ भाग के जाएंगे। ह्याला म्हणतात कंट्रोल. इसे कहते हैं नियंत्रण। म्हणजे थोडक्यात सांगायचं गेलं की तुम्ही आणि मी, आपल्याला एकच पर्याय आहे, एकच. और थोड़े में कहा गया तो आपको और मुझे बस एक ही पर्याय है, एंड दैट इज, और वो है रॅप्चर. स्वर्गारोहण। आमेन. आमेन। तर त्यासाठी तुम्हाला ह्या मेसेज अनुसार करायचं आहे. तो उसके लिए आज के संदेश के अनुसार आपको करना है। किती लोक तयार आहेत? कितने लोग तैयार हैं? आमेन. Amen. ओके, लेट्स गो इनटू द वर्ड नाउ. ठीक है, आज के वचन में हम चले जाते हैं। लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू जजेस चैप्टर 8 एवरीबॉडी. तो आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे न्यायों इसका 8वां अध्याय, And we're going to read from verses 22 onwards. और हम वचन 22 से आगे पढ़ने वाले हैं। I'm going to read and I'm going to stop. और मैं पढ़ने वाला हूँ और मैं रुकने वाला हूँ, Amen. Because we have the anointing session today. क्योंकि आज अभिषेक का सत्र है। But I will speak for some time. लेकिन कुछ देर के लिए मैं बात करूंगा। Getting your engines ready.
आपके इंजन को तैयार करूंगा। Amen. Amen. For the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के अग्नि के How लिए। many are ready for that? कितने लोग उसके लिए तैयार है? Amen. Amen. Here we go, everyone. Judges chapter 8, everybody, verse 22 onwards. आइए यहाँ पर हम चलते हैं न्यायों का इसका 8वां अध्याय वचन 22 से आगे। Then the men of Israel said unto Gideon, Rule over thou over us, both thou and thy son son's son also, for thou hast delivered us from the hand of the Midians. तब इस्राएल के लोगों ने गिदोन से कहा, तू हम पर और तेरा पुत्र और तेरा पोता हम पर राज करे, क्योंकि तूने हमें मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है। See that, look at the DNA. देखो इसके पास, देखो डीएनए के पास देखो। Their ancestors were ruled by Pharaoh. उनके पूर्वज जो है वो उन पर फिरौन का राज था। Amen. Amen. They were used to be led by a man. और उनको आदत थी कि एक इंसान उनकी अगुवाई करे। So now when they are living in the promised land, in their own land, तो अब जब वो वाचा के भूमि में जी रहे हैं, उनके खुद के जमीन पर जी रहे हैं, nobody has the audacity to connect with God. और किसी के पास वो जिगरा नहीं कि वो खुदा के साथ जुड़ Nobody जाए, has the love to connect with God directly. और किसी के पास, किसी के दिल में वो प्यार नहीं कि वो सीधे खुदा के साथ जुड़ जाए। And they are telling Gideon और वो गिदोन से कह रहे हैं that rule over us, thou and thy son and thy son's son also. कि तू हम पर राज कर, तू कर, तेरा पुत्र करे और तेरा पोता भी करे। पूर्ण राष्ट्र म्हणतं गिदोनाला की तू आमच्यावरती राज्य कर, पण कोणीतरी राज्य करावं. और पूरा राष्ट्र गिदोन से कह रहे हैं कि तू हम पर राज करे, कि ताकि कोई हम पर राज करे। पण ते देवाला म्हणू शकत नाही, तू आमच्यावर राज्य कर. लेकिन वो खुदा को ये कह नहीं पाए कि ए खुदा तू हम पर राज कर। आम्हाला सोडवलं गिदोनाने सोडवलं मिद्यानापासून. हमने छुड़ाया, गिदोन ने हमें मिद्यानियों से छुड़ाया है। Yeah, Gideon was the one who delivered us, not God. हाँ, गिदोन ही है जिसने हमें छुड़ाया है, खुदा नहीं। मनुष्यच दिसतो बोला एकमेकाला. हाँ, इंसान ही दिखता है। बोलो एक दूसरे बाजाले को को, कहो, बोलो. इंसान ही दिखता है, इंसान ही दिखता है. इंसान ही दिखता है। ह्यांच्या प्रार्थने थ्रू मला आरोग्य मिळालं, ह्यांच्या प्रार्थने थ्रू आमच्या घरामध्ये आशीर्वाद आले, ह्यांच्या प्रार्थने थ्रू आम्हाला समृद्धी मिळाली, ह्यांनी प्रार्थना केली म्हणून मी बरा झालो. हे मनुष्य मनुष्य मनुष्य. और इनके प्रार्थना के द्वारा हमारे घर में बरकत आई, इनके प्रार्थना की वजह से हमें चंगा हो गया, इनकी प्रार्थना के वजह से हमें सब कुछ मिला है। इंसान इंसान इंसान। You tell us and we will follow. और तू हमसे कह और हम वैसे वैसे तेरे पीछे हो लेंगे। Yeah, you tell us and we will do what you want us to do. और तू हमको सिर्फ बता, और जो तुझे चाहता है, जो तू चाहता है वो हम करेंगे। And Gideon said unto them, I will not rule over you, neither shall my son rule over you, the Lord shall rule over you. Hallelujah. परंतु गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम पर राज न करूंगा, न मेरा पुत्र तुम पर राज करेगा, यहोवा तुम पर राज करेगा। हालेलुया। Amen. चिल्लाएगा क्या? आमीन। But you know something what happened? लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ? God also did not rule over them. खुदा ने भी उन पर राज्य नहीं किया। ते देवाचे लोक होते तरी देवाने राज्य नाही केलं. वो खुदा के लोग थे, फिर भी खुदा ने उन पर राज्य नहीं किया। का? क्यों? का? क्यों? कारण देवाला कोणालाही जबरदस्ती करायला आवडत नाही. क्योंकि खुदा को किसी पर भी जबरदस्ती करना पसंद नहीं। आमीन। असा आपला देव आहे. ऐसा हमारा खुदा है। Amen. Amen. Now let's go further. अब हम आगे बढ़ते And हैं। Gideon said unto them, I would desire a request of you, that ye would give me every man the earrings of your prey, for the golden earrings, because they were Ishmaelites. फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं कि तुम में से हर एक अपने लूट में से एक एक सोने की बाली मुझे दे, क्योंकि वो इश्माइली थे और उनके सोने की बालियां होती थी। And they answered, we will willingly give them. And they spread a garment and did cast therein every man the earrings of his prey. और उन्होंने कहा, हम अवश्य देंगे, और उन्होंने एक चादर बिछाई और सब ने अपने अपने लूट की बालियां उस पर डाल दी। And the weight of that golden earrings that he requested was 1,700 shekels of gold, besides ornaments and collars and purple raiment that was on the kings of Midian, and beside the chains that were about their camels' necks. और जो सोने की बालियां उसने मांगी थी, उनका भार 1,700 शेकेल सोने का निकला। इसके सिवाय जो चंद्राकार आभूषण और कानों के बूंदे और बैंगनी वस्त्र जो मिद्यानियों के राजाओं के पहने थे, और ऊंटों की गलों के गलपट्टे थे। And Gideon made an ephod thereof and put it in his city. और गिदोन ने उनसे एक एफोद बनवाया और अपने नगर
even in ओपरा में, even in Ophrah. ओपरा में रखा. And all is, now this is very important, everybody. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी जन. And all Israel went thither a whoring after it, which thing became a snare unto Gideon and to his house. और सारा इज़राइल वह उसके पीछे व्याविचार करने लगा और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा. Are you ready for the word today, everybody? क्या आप सभी जन आज के वचन के लिए तैयार हो? Amen. Amen. Listen carefully. सभी जन ध्यान से The सुनो. nation of Israel was led by the hand of God. और इज़राइल राष्ट्र जो है परमेश्वर के हाथ के द्वारा उनकी अगुवाई हो रही थी. And the Lord, when He decided to make a tabernacle, और जब खुदा ने ये तय किया कि वो एक निवास मंडप बनाए, we read that in Exodus 25, everybody. और हम इस बात को निर्गमन के 25वां अध्याय में पढ़ते He हैं. says to Moses, वो मूसा से कहता है make for me a sanctuary that I may dwell amongst my people. कि मेरे लिए एक निवास मंडप बना ताकि मैं मेरे लोगों के बीच में रहूं. Now, अब after the whole construction is done, अब पूरा निवास मंडप बनाने के बाद then the Lord decides and tells Moses that to make the garments of the priest. और फिर खुदा जो है मूसा से कहता है कि याजक के वस्त्र तू बना. And that time He tells in particular a clear-cut instruction to Moses और उस वक्त खुदा जो है मूसा को बड़ा साफ तरीके से ये कहता है that make an effort for the high priest. कि माँ याजक के लिए एक एफोद तू बना. Now, what is an ephod? और अब एफोद है क्या? Listen, everybody, carefully. सभी ध्यान से सुनो. It is a breastplate of a piece of cloth that is worn by the high priest on his chest. और वो महायाजक के छाती पर एक कपड़े का टुकड़ा है. Now, this ephod has 12 precious stones. अब ये एफोद जो है इसमें 12 बहुत ही मूल्यवान पत्थर है. Now, listen carefully. आप सभी ध्यान से सुनो. Some of these stones were found in the body of Lucifer. और इनमें से कुछ पत्थर जो थे वो लूसीफर के शरीर में पाए जाते थे. Now listen carefully. अब सभी ध्यान से So सुनो. these 12 stones were embedded into that piece of cloth on the chest of the high priest. तो फिर ये 12 पत्थर जो थे वो उस कपड़े के अंदर उन्हें लगाया गया था जो महायाजक के छाती पर रखा जाता था. Now, अब they were engraved with the tribe, the name of the tribe of every child of Israel. और इज़राइल के हर एक बच्चा जो है उनके कुल से ये हर एक पत्थर बुना गया था. Engraved, the name was उनका engraved. नाम जो है उस पत्थर पर लिखा गया था. Means 12 tribes of Israel, means I'm talking about Jacob, his 12 sons. So 12 different stones with their names of the tribes engraved on every stone. तो इज़राइल के 12 कुल जो थे इसका मतलब यह है कि याकूब को जो 12 बच्चे थे उनके जो नाम है उनके जो कुल है उनका हर एक पत्थर पर उनका एक एक नाम लिखा गया था. And there were 2 special stones inside that garment. और वो कपड़े के अंदर 2 विशेष पत्थर थे. Urim and Thummim. उरिम और तुमिम. Now these 2 stones, अब ये 2 पत्थर जो थे they were God's method of giving divine direction to the whole nation of Israel. और ये Or I परमेश्वर can say God's divine apparatus. और मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर की ओर से लोगों को दैवीय दिशा देने का एक तरीका था या फिर एक औजार था. ये कह सकता हूं. These 2 stones. ये 2 पत्थर. Nobody knows from where they came. और किसी को पता नहीं कि ये कहां से आए. Nobody knows their origin. और किसी को ये पता नहीं कि इनका उगम कहां से हुआ है. They only know the mention of these stones given by God to Moses. That's all. और वो बस इतना ही जानते हैं कि ये 2 पत्थरों का उल्लेख खुदा ने मूसा को दिया था. इतना ही. And they had to be taken and kept into the breastplate of the high priest. और इस बात को लेकर वो महायाजक के एफोद में वो या फिर वो कपड़े के अंदर उसे रखा जाना था. Now, अब whenever the high priest would go and meet God in the Holy of Holies, जब listen to this very carefully. और इस बात को बड़े ध्यान से सुनो. जब कभी भी महायाजक परम पवित्र स्थान में जाकर खुदा से मिलता था, He had to wear that ephod on his chest. और उसे इस एफोद को उसके छाती पर पहनकर जाना पड़ता था. He had to do that. उसे वो करना ही पड़ता था. Without that, he was not allowed to go in. उसके बगैर उसे अंदर जाने की परवाना नहीं था ही नहीं. Why? क्यों? I'll tell you the reason why. मैं आपको कारण बताता हूं क्यों.
Listen, everybody. सभी जन सुनो, We are talking about God Almighty, the creator of the entire universe. और हम सर्व सामर्थ्य परमेश्वर जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about that God who made every single star that is born through great explosion in space. और हम उस जिंदा खुदा के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अगिनत तारों को बनाया है, जो तारे जो है बड़े बड़े बम फूटने समान ऐसे फूटते हुए वो तैयार हुए, उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are talking about this God visiting a people. और हम इस खुदा के बारे में बात कर रहे हैं जो इन लोगों से आकर मिल रहा है. एका लोकांशी येऊन भेटणाऱ्या देवाबद्दल आपण बोलत आहोत. एका विशिष्ट लोकांना येऊन भेटणारा और एक लोगों को आकर मिलने वाला इस खुदा के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक विशेष लोगों को आकर मिलता था. So these 12 stones, when the high priest would go and meet God with, और ये 12 पत्थर लेकर महायाजक जाकर उस खुदा से जो मिलता था, he would show God his chosen people. वो खुदा को उसके चुने हुए लोग दिखाता था. And God would see that और खुदा उसे देखता था and answer the cry of his nation. और उस राष्ट्र के पुकार को जवाब देता था. This is the work of the ephod. और ये काम उस एफोद का. सगळ्यांना फंक्शन कळालं का? सगळ्यांना नीट समजलं का? और एफोद का कार्य सबको समझ में आएगा, सबको ठीक से समझ में देवाला आएगा. आठवण करून देणं की तुझे हे लोक आहेत. खुदा को याद दिलाना कि ये तेरे लोग हैं. प्रत्येक भेटीला हर बार जब मुलाकात होती थी या तब सृष्टीचा निर्माण करत्याला दाखवून देणं की आम्ही तुझे निवडलेले वंश ये आहोत. सृष्टि का निर्माण करता जो है उसे ये दिखाना कि हम तेरे चुने हुए लोग हैं. म्हणून आम्ही इथं उभा राहू शकतो तुझ्या समागमात. इसलिए हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं तेरे उपस्थिति में. आम्ही मोशेसारखे नाही, हम मूसा समान नहीं है, आम्ही फारच पडलेलो आहोत, हम तो बहुत गिरे हुए हैं. पण तुझ्या कृपेद्वारे आम्ही इथं उभे आहोत तुला आठवण करून देण्यासाठी की तुझे लेकर बाहेर उभे आहेत. लेकिन तेरे कृपा की वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं तुझे याद दिलाने के लिए कि तेरे बच्चे बाहर खड़े हैं. आमेन. आमेन. आणि तो देव मग त्या इस्रायल राष्ट्रात त्यांना उत्तर द्यायचा त्या एफोदाद्वारे. और फिर खुदा जो है उस इस्राएल राष्ट्र को जवाब देता था उस एफोद के द्वारा. आणि मग तो महायाजक जो होता तो त्याच्या वस्त्राच्या आतमध्ये ते दोन दगडांना त्यांच्या धरायचा आणि मग बाहेर येऊन तो बघायचा की त्यांचा कोणता रंग झाला किंवा त्याचा काय कोणती बाजू उलटलेली आहे. और फिर वो महायाजक जो है उन दो पत्थरों को बाहर निकालता था और वो देखता था कि उसका रंग कैसे कौन सा हुआ है या फिर कौन से बाजू में वो पलटा है. The stone Urim means और जो पत्थर उरिम उसका अर्थ ये है, उरिम का अर्थ है light, प्रकाश. and the stone Thummim means, और पत्थर थमिम का अर्थ ये है, it means the truth or perfection. और उसका अर्थ है कि सच्चाई या परिपूर्णता. That means इसका अर्थ ये है God would tell the nation of Israel what to do through these two stones. कि खुदा इस्राएल राष्ट्र को इन दो पत्थरों के द्वारा बताता था कि उन्हें क्या करना है. Now listen. अब सुनो, What does Gideon do? और गिदोन क्या करता है. They had an ephod, उनके पास एक एफोद था but folded and kept in Shiloh लेकिन बंद कर उसे शिलो में रख दिया था because they had no high priest. क्योंकि उनके पास कोई महायाजक था ही नहीं. That is the problem. यही तो समस्या है. They had no high priest. उनके पास कोई महायाजक था ही नहीं. घालणार कोण? पहनेगा कौन, जाणार कोण? अंदर जाएगा कौन. तोच व्यक्ती जो देवाने निवडलेला आहे. वही व्यक्ति या वही इंसान जिसे खुदा ने चुना है. म्हणून गिदोन काय करतो माहिती आहे का? सोन्याचा बनवतो एक एफोद. इसलिए गिदोन क्या करता है पता है क्या, कि वो सोने का एफोद बनाता है जेणेकरून लोकांनी त्याच्याकडे बघून तरी देवाच्या जवळ जावं.
ताकि लोग जो है उस चीज को देकर उसके द्वारा तो वो खुदा के पास चले जाए। पण लोक काय करतात माहितीये का, लेकिन आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, त्या एफोदाचीच मूर्ती बनवतात आणि त्याची भक्ती करायला लागतात. लोग उस एफोद को एक मूर्ति बनाते हैं और उसी की भक्ति करने लगते हैं। एफोद आजच्या तारखेला आम्ही सेवक लोक आहोत. और एफोद आज के तारीख में हम सेवक वर्ग है। आमचं कार्य आहे, आमचं काम आहे लोकांना त्या देवापर्यंत जवळ घेऊन येणं. हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि लोगों को उस खुदा के करीब ले पण जाना। आम्ही काय करतो माहितीये का, लोकांना आमच्याकडेच बघायला लावतो लेकिन हम क्या करते हैं पता है कि हम लोगों को हमारे पास ही देखने लगा आणि मग लोक आमचीच मूर्ती बनवतात और फिर लोग हमारी ही मूर्त बनाते हैं आणि आमचीच भक्ती सुरू और करतात फिर हमारी भक्ति शुरू करते हैं आणि व्यभिचार सुरू करतात देवाविरुद्ध. और खुदा के विरोध में व्याविचार शुरू कर देते व्यभिचार हैं। म्हणजे काय की दुसऱ्याला देव मानणं. और व्याविचार का अर्थ क्या है कि दूसरों को खुदा करके मानना। मग तो माणूस असो का काही असो, ही आजच्या तारखेला ख्रिस्ताच्या वधूची अवस्था आहे. फिर वो इंसान हो या कुछ भी हो, ये मसीह की दुल्हन की अवस्था आज के तारीख में है। आणि आज म्हणून एवढे सगळे लोक मार्गभ्रष्ट झालेले आहेत का, कारण प्रत्येक मंडळांमध्ये एफोद आहेत. और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है उनके मार्ग जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कलीसिया में आज बहुत एफोद है। लाईनवर लाईन लागलेल्या आहेत मंडळांमध्ये. प्रत्येक जण पालकाकडून आशीर्वाद घ्यायला तडफडत असतो. और कलीसिया में कतार की कतार लग चुकी है कि पास्टर के द्वारा उन्हें आशीर्वाद मिला, आशीष मिले। पण कोणत्याच मंडळीमध्ये हे बोललं जात नाही, गुडघ्यावर जा आणि पवित्र आत्मा मिळवून घ्या आणि आत्म्याने भरून घ्या आणि देवाचा शोध स्वतः करा. लेकिन कोई भी कलीसिया में यह बात नहीं बताई जाती है कि घुटनों पर जाओ, खुदा को खोजो, पवित्र आत्मा से भर लो और खुदा के पास करीब जाओ आणि स्वतः तुम्ही देवाच्या जवळ जा और आप खुद खुदा के करीब जाओ। स्वतः तुम्ही तुमच्या अंतःकरणामध्ये अर्पणाची वेदी बांधा और आप खुद ही आपके दिल में वो अर्पण की वेदी बांध लो। आणि म्हणून गिदोन काय म्हणाला की देव तुमच्यावर राज्य करेल, मी आणि माझा परिवार नाही. और इसलिए गिदोन ने ये कहा कि यहोवा तुम पर राज करे, मैं और मेरा पुत्र नहीं, मेरा परिवार नहीं। त्याची मनशा एवढीच होती की या एफोदाकडे पाहून लोकांनी देवाचा शोध करावा. और उसकी इच्छा बस इतनी ही थी कि इस एफोद को देखकर लोग जो है खुदा की आप उपासना करें। पण त्याचा प्लॅन सगळा उलटा झाला. लेकिन उसकी पूरी योजना उल्टी गिर गई। का माहितीये का, आपको पता है कारण क्यों? जे देवाद्वारे असतं तेच योग्य असतं. क्योंकि जो खुदा के द्वारा होता है वही सही होता है। गिदोनाची मनशा फार चांगली होती, त्याचा हेतू फार चांगला होता, त्याचा उद्दिष्ट फार चांगला होता. और गिदोन की इच्छा जो थी वो बहुत अच्छी थी, उसका उद्देश्य जो था बहुत अच्छा था, उसका मकसद जो था बहुत अच्छा था। पण फक्त याजक किंवा एक मार्ग तयार करून होत नाही. लेकिन सिर्फ एक याजक या फिर एक मार्ग तैयार कर होता नहीं है। त्या मार्गाला देवाने नियुक्त करणं हे महत्वाचं आहे. और खुदा ने उस मार्ग को चुनना ये अनिवार्य है, म्हणून ज्यावेळेस आदम आणि हवेला देवाने एदेनाच्या बाहेर काढलं, देवाने जळती एक तलवार, जळती ज्वलंत तलवार त्या दिशेला ब्लॉक करण्यासाठी, त्या मार्गाला ब्लॉक करण्यासाठी ठेवली होती मध्ये. और इसलिए खुदा ने आदम और हवा को उस वाटिका से निकाल दिया और वो मार्ग जो जीवन के वृक्ष के पास जाता है वहां पर एक जलता हुआ तलवार खुदा ने वहां पर लगवा दिया। Who is this flaming sword? और ये जलता हुआ तलवार कौन है? कौन है ही ज्वलंत तलवार? पवित्र आत्मा. वो है पवित्र आत्मा। आणि पवित्र आत्माच का? और पवित्र आत्मा ही आणि क्यों? तो मार्ग अडवायचा का? और वो मार्ग को आड़े क्यों आना है? कारण देवाने हे म्हटलं की मी माणसाला बाहेर काढलं माझ्या तारणापासून, आता मीच किंमत मोजेल आणि मी मनुष्य म्हणून जन्म घेईल आणि मी माणसाचा उद्धार करेल, हे देव म्हटला. क्योंकि खुदा ने यह कहा कि मैंने इंसान को बाहर निकाला और मैंने इंसान को रोका, इसलिए मैं ही अब खुद बलि दूंगा, इंसान बनकर जाऊंगा और बलि चढ़ूंगा और ये मार्ग इंसान के लिए मैं बनाऊंगा. आणि मीच मार्ग सत्य व जीवन बनणार. और मैं ही मार्ग सत्य और जीवन बनूंगा. जेणेकरून कोणीही व्यक्ती त्या मार्गाचा धंदा करू नये. ताकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस मार्ग का धंधा न बनाए. कोणीही तारण विकू नये और कोई भी उद्धार को बेचे नहीं. पण आज मंडळामध्ये तेच होतंय. लेकिन आज के तारीख के कलीसिया में यही हो रहा है. प्रार्थना करून घ्यायची द्या 1.5 लाख, प्रार्थना करून भविष्यवाणी सांगायची द्या 2.5 लाख. ह्या मंडळीमध्ये भविष्यवाणी प्रार्थना सगळ्या फ्री आहेत. और
प्रार्थना करके लेना है तो 2-1.5 लाख, और भविष्यवाणी आपको सुनने है तो 2-2.5 लाख, लेकिन इस कलीसिया में प्रार्थना और भविष्यवाणी मुफ्त में बांटा जाता है, सगळं इथं फ्री आहे, लेक्चर पण फ्री आहेत. और यहाँ पर सब कुछ फ्री है और लेक्चर भी फ्री है. संत हो, लक्षात ठेवा, और संत फार हो, सगळे कमी ध्यान से अशा सुनो. मंडळ्या आहेत जिथं तुम्हाला देवाचा आत्मा बोलताना आढळेल. और संतगणों सभी जन सुनो, बहुत कम ऐसे कलीसिया बचे हैं जहां पर आप सुनोगे कि पवित्र आत्मा वहां पर बोल रहा आणि है. ते सेवक तुम्हाला देवाच्या जवळ जायला सांगतात, त्यांच्या जवळ यायला नाही. और वही सेवक वो लोगों को कहते हैं कि वो आप खुदा के करीब जाओ, उनके करीब मत आओ. मला एकदा आठवतं, एका व्यक्तीने मला सांगितलं, डॅडी. और मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, डैडी. मी बोललो, ए मी तुझा डॅडी नाही. मैंने कहा, ए मैं तेरा डैडी नहीं हूं, डॅडी तुझा वरती आहे, और तेरा डैडी ऊपर है. तोच माझा पण डॅडी आहे. वो भी, और वही मेरा भी डैडी है. आमेन. आमेन. कधीही विसरू नका, एफोद आम्ही आहोत, और कभी देव भी- नाही. और इस बात को कभी ना भूलो कि एफोद हम हैं, खुदा नहीं. आम्ही एफोद आहोत. हम एफोद है, एफोदाचं देव नका बनू. और एफोद का खुदा मत बनाओ. बोला एकमेकाला, एफोदाचं देव नका बनू. एफोद का खुदा मत बनाओ. पुन्हा बोला, एफोदाचं देव नका बनू. और एफोद का खुदा मत बनाओ. पुष्कळ लोक एफोदाला देव मानतात. और बहुत सारे लोग जो है वो एफोद को खुदा करके मानते हैं. एफोदचा सन्मान करा, और एफोद का सम्मान करो, एफोदवर प्रेम करा, और एफोद पर प्यार करो, पण देवापेक्षा जास्ती नाही. लेकिन खुदा से ज्यादा नहीं. एफोदातून देवाची वाणी येते, एफोदातून देव बोलतो, ठीक आहे, चांगली गोष्ट आहे, पण तो एफोद देव नाहीये. और एफोद के द्वारा परमेश्वर की वाणी हम तक आती है, और एफोद के द्वारा खुदा बोलता है, ठीक है, लेकिन ये एफोद खुदा नहीं. आमेन म्हणेल का? आमेन. तर संत हो, लक्षात ठेवा, आज आपल्याला आपले बेअरिंग सरळ करायचे. वी हॅव टू गेट आवर बेअरिंग्स राइट. और संतगणों आज इस बात को ध्यान से सुनो कि हमें हमारे बेयरिंग जो है वो ठीक करने हैं. वी कैन नॉट बी लाइक दोज 8 फुलिश वर्जन्स. हम उस 8 मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बन सकते. कोण आमेन चिल्लाएंगे क्या? कम ऑन. Amen. वी हैव टू अंडरस्टैंड. हमें इस बात को समझना है. We have to understand, we have to be the wise virgins, not the foolish virgins. हमें इस बात को समझना है कि हमें वो सियाने कुंवारियां बनना है, वो मूर्ख कुंवारियां नहीं. कोई आमीन चिल्लाएगा? क्या कोई आमीन चिल्लाएगा? People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. इस बात को समझ लो. Part 1 today, part 2 is next week. और भाग 1 आज है और भाग 2 अगले हफ्ते है. Listen carefully, I'm closing over here और now. सभी जन ध्यान से सुने, यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ. You, everybody has got an effort given by God. और आप सभी को परमेश्वर के द्वारा एक एफोद दिया गया है, And that is the Holy Spirit. और वो है पवित्र आत्मा. Amen. Amen, amen, You amen. can connect to God directly through Him. और उसके द्वारा आप सीधे खुदा के साथ जुड़ सकते हो. Do you not know you all are priests in the sight of God? क्या आप सभी को पता नहीं कि खुदा के नजरों में आप सभी जन याजकगण हो? आमेन. You are the temple of God. आप परमेश्वर का मंदिर हो. Tell your neighbor you are the temple of और आपके God. पड़ोसी से कहो आप परमेश्वर के मंदिर हो. You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर You हो. are the temple of आप God. परमेश्वर के मंदिर हो. Do you know something? क्या? If this word was spoken even 50 or 200 years ago in our nation, आपको क्या ये बात पता है कि अगर ये शब्द, ये वचन जो है 50 साल या फिर 200 साल पहले भी हमारे राष्ट्र में कहा जाता तो you know something? आपको पता है कुछ? The people in this nation would have gone crazy. और इस राष्ट्र के लोग जो है वो पागल हो जाते थे. काय माहितीये का? फक्त एवढंच वाक्य की तू देवाचं मंदिर आहे. बस इस वजह से कि इस वाक्य की वजह से कि तू खुदा का मंदिर है. कारण ह्या राष्ट्रामध्ये असे काही लोक होते की ज्या लोकांना दुसऱ्यांनी देवाचा शोध केलेला, दुसऱ्यांनी देवाच्या जवळ गेलेलं आवडत नसायचं. क्योंकि इस राष्ट्र में ऐसे लोग थे कि दूसरे लोग जो है खुदा की खोज करे और दूसरे लोग जो है खुदा के करीब जाए, उन्हें पसंद नहीं था. पण आज आपल्या देशामध्ये देव सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहे. लेकिन आज हमारे देश में खुदा सबके लिए खुला है. आणि येशू ख्रिस्तानी तर हा तर पूर्ण बदलावच करून टाकलेला आहे. माणसाला देवाच्या जवळ आणले स्वतःचं अर्पण देऊन. और प्रभु यीशु मसीह ने तो पूरा काया पलट ही कर दिया है कि इंसान को ही खुदा के करीब वो ले आया है. आमेन. Amen. आमेन. स्वतःचं अर्पण देऊन. खुद की बलि चढ़ाकर. आमेन. Amen. So people of तो God, परमेश्वर के लोगों, tell your neighbor with great joy आपके पड़ोसी से आनंद से कहो and with great pride. और
गर्व से कहो, You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर हो, पुनः बोला, आप परमेश्वर के मंदिर हो, पुनः बोला, आप परमेश्वर के मंदिर You हो, are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर You हो, are the temple of आप God. परमेश्वर के मंदिर हो। Amen. Amen. And let me tell everybody, और मुझे आप सभी को बताने दो, a temple is empty without the glory, without its God. और एक मंदिर जो है उसके खुदा के बगैर और खुदा के महिमा के बगैर खाली है। आपल्याला गौरवानी देवाच्या भरायचं आहे और खुदा के महिमा से खुद को हमें भर के लेना है आणि भरलेलं राहायचं आहे. और भरा हुआ ही रहना है। Amen. Amen. Everybody right now, eyes closed.